Jyoti Rajput, and today our new topic is that is transport across plasma membrane. As we can see in this diagram, there is transportation taking place. So there are a number of substances which can move out of the cell, and there are a number of substances which can move inside the cell. So this transportation it is taking place by the help of the plasma membrane. So ये जो transportation है, you can say it is the prime function of the plasma membrane. सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इट टेक्स प्लेस वेरी efficiently. And here there are some of the examples of transportation which we can discuss, like the absorption of digested macromolecule by the intestine. So जो भी intestine है, whatever the nutrients are present, they are taking absorbed by the intestine cells. So इस तरीके से जो है the cells they are able to absorb the nutrients from outside to inside the cell. Next, for example, the stomach. It is the one which secretes a number of digestive juices, digestive enzymes. So, ये जो acid का secretion है from the stomach. Here, the molecules they are moving out of the cell. This is also a transportation example. Now, the next example is that is exchange of gases like the oxygen and carbon dioxide in the lungs. Lungs जो हैं, they are the one which absorb the oxygen, that is intake of oxygen molecule is taking place, and the lungs are the one which are removing the carbon dioxide. It means the carbon dioxide molecule they are moving out of the cell. Next, there are some more example like the ATP formation. It is taking place in the mitochondria and the chloroplast. So the ATP है now it is going to move out of the cell. So this is how through the plasma membrane only the ATP will move out of the cell. Even next examples like the functions of the kidney. Kidney they have a number of functions, like it secretes some hormones also. So here the hormone secretion by the kidney now it is going to take place out of the cell, so the molecule move out of the cell. So here this is how there are number of molecules which enter inside the cell, and the number of molecules which can exit out of the cell. So ये जो transportation है, this is a main major function of the plasma membrane, due to which there are substances which can enter inside the cell and which can go outside the cell. So here जो substances हैं, ऐसा नहीं है कि सभी substances cell के अंदर enter कर सकते हैं और सभी substances cell के out exit कर सकते हैं. Only there are some substances which can enter and exit out of the cell. इसी character को हम बोलते हैं that is selective permeability. The plasma membrane they have the characteristic of selective permeability. It means only selective things can enter inside the cell and exit out of the cell. So इस तरीके से selective permeability जो है it allows to keep a check which substance to enter inside the cell and which substances to exit out of the cell. So यहाँ पर here we are going to study about three fundamental different processes by which substances cross the biological membrane. पहला आता है that is passive transport, second is active transport, next is endocytosis and exocytosis. So first we'll talk about the passive transport. Passive transportation जो है, here first of all there are molecules which move from higher concentration towards the lower concentration. And here when we talk about some examples, suppose we take an example, suppose cell के बाहर जो है the oxygen concentration it is high, and inside the cell the oxygen concentration it is low. So the molecule they will always move from the higher concentration towards the lower concentration. And here ये जो molecules हैं, so the molecules they are very small in size. ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, इनका size इतना ज़्यादा छोटा होता है कि here they can diffuse into this phospholipid bilayer and can get enter inside the cell. So इस तरीके से जो है here these are the minute molecules which can get diffused from this membrane and can enter inside the cell. और दूसरी बात जो है कि जो molecules जो होने चाहिए उनका concentration हमेशा हाई होना चाहिए एक तरफ और लो होना चाहिए एक तरफ, तभी जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और यहाँ पर जो है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. कोई भी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कोई भी यूज ऑफ एटीपी नहीं नजर आता. हियर नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पैसिव डिफ्यूजन. यू कैन से सिंपल डिफ्यूजन और यू कैन से फ्री डिफ्यूजन.
और जो दूसरे टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पैसिव डिफ्यूजन. ये जो पैसिव डिफ्यूजन है इट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो एक ग्रेडियंट होना चाहिए, एक जगह पे ग्रेडियंट हाई होना चाहिए और दूसरी जगह पे ग्रेडियंट लो होना चाहिए. सो दिस इज हाउ द मॉलिक्यूल्स दे विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और ये जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का ये तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा तब तक जब तक एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता. सो जो मॉलिक्यूल्स आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, एक्वायस मीडियम में डिसॉल्व हो जाते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स आर वेरी माइन्यूट मॉलिक्यूल. सो दे कैन ऑटोमेटिकली गेट डिफ्यूज्ड फ्रॉम दिस phospholipid bilayer and can get inside the cell, that is they can come into the cytoplasm of the cell. और इस तरीके से जो है they can get into the cell. और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हियर दीज आर द स्पेसिफिसिटी, बहुत ही स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं. दैट इज वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे हैव द कैरेक्टर दैट इज सिलेक्टिव परमिएबिलिटी. और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये ग्रेडियंट के ऊपर मैटर करता है. सो here when we see the gradient, one place there is a high concentration of molecule and the other place there is a low concentration molecule. तो ये gradient जब होगा तभी हमको diffusion का process जो है वो देखने को मिलेगा. और डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता. जब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर और सेल के अंदर इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, तभी ये डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी. दूसरी बात here during the diffusion of this molecules there is no requirement of ATP, there is no requirement of energy is taking place. So कुछ small molecules हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इथेनॉल है, these are the very small size molecules. they ये जो है ये आसानी से phospholipid bilayer को थ्रू एंटर कर सकते हैं. लेकिन मेन बात ये है हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, मतलब कि एक जगह पे हाई होना चाहिए और दूसरी जगह पे लो होना चाहिए. If I talk about suppose outside the cell the oxygen molecule is high, inside the cell the oxygen molecule is low, so automatically the molecules will move from higher concentration towards the lower concentration. या तो फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि सपोज सेल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम है, सो ऑटोमेटिकली द कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में. इट इज ऑल्सो द अनदर टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पर जो है हियर इट इज अ काइंड ऑफ अ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. हियर यहाँ पर जो है हियर द मॉलिक्यूल्स यहाँ भी मूव करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उनका साइज कुछ ज्यादा है, कुछ बड़ा है. दैट इज वाई दे रिक्वायर अ कैरियर, दे रिक्वायर अ प्रोटीन कैरियर. सो इस तरीके से जो है देयर आर प्रोटीन कैरियर रिक्वायर्ड जो कि डिफ्यूजन को हेल्प करेगा, जो कि डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कराएगा. सो तभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और ये डिफ्यूजन अगेन तब तक चलेगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता. सो यहाँ पर जो है जैसे कि अगर हम बात करें सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी. ओके, और एंड ये ग्लूकोज की मॉलिक्यूल है. इमेजिन कर लीजिए दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज का साइज बड़ा होने की वजह से वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू डिफ्यूज करके सेल के अंदर नहीं आ सकते. दैट इज व्हाई दे रिक्वायर अ कैरियर. सो ये जो ब्लू कलर के सपोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ये सराउंडिंग में प्लाज्मा है. हियर द ग्लूकोज दे कैन एंटर इनसाइड द सेल बाय द हेल्प ऑफ द कैरियर. दीज आर द प्रोटीन कैरियर. या तो फिर इमेजिन कर लीजिए ये कुछ अमाइनो एसिड है फिनाइल एनालिन which can get into the cell, which can get inside the intestine by the help of the facilitated diffusion. So carrier protein involved in transportation में, so we call them facilitated diffusion. यहाँ पर here in this you can see this is the example of diffusion, simple diffusion. ओके, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. और जो दूसरा एग्जांपल है दिस इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जहाँ पर यहाँ भी दैट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल बट बाय द हेल्प ऑफ अ कैरियर दैट इज अ प्रोटीन कैरियर. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की. हियर ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है खास बात है यहाँ पर जो है देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए सबसे हम एक पहले एक एग्जांपल लेंगे. सो यहाँ पर जो है सपोज हमने एक माउंटेन लिया है. ओके, हियर फ्रॉम द
हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जब भी हम सपोज ऊपर से नीचे आते हैं, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है बहुत ही कम लगती है। लेकिन जब हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, देयर इज ऑलवेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो जब भी हम सपोज पहाड़ से उतरते हैं तो ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ की ओर तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। सो इसका मतलब है वेन एवर वी मूव फ्रॉम द higher concentration to lower concentration there is no energy required, मतलब कि मान लेते हैं, और whenever we move from the lower concentration to higher concentration there is a huge amount of energy it is required, ज्यादा एनर्जी लगती है। so same बात ये है, अगर suppose here the movement of the molecule जो होता है in active transportation में, it is always taking place from the lower concentration towards the higher concentration। अभी तक हमने passive transportation में देखा था molecules जो हैं वो high concentration से lower concentration की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बात अलग है। यहाँ पर जो molecules है they are moving from the lower concentration towards the higher concentration, और इस चीज के लिए जो है ये जो opposite movement हो रहा है molecule का against the concentration movement हो रहा है molecules का, here there is a requirement of energy, that is a metabolic energy। तो यहाँ पर भी एक पंप की जरूरत होगी, जहां पर here the molecule will move from lower concentration to higher concentration by using a energy that is the ATP। और यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस में ही मूवमेंट नजर आएगा, वन डायरेक्शन में मॉलिक्यूल का मूवमेंट नजर आएगा। यहाँ पर here we will take the examples of the active transportation, okay, which is taking place inside the cell and also in the organelle। so suppose हम बात करते हैं nutrients की। so suppose this is a cell, ये कोई एक सेल है, okay। usually हम देखते हैं suppose outside the cell the nutrients they are present, okay, और सेल के अंदर भी nutrients present है। सेल के अंदर भी हम यहाँ पर ले लेते हैं this is the nutrients they are present, okay। usually normally क्या होता है, suppose the nutrient concentration outside the cell it is high and nutrient concentration inside the cell it is low। so movement जो होगा nutrients का automatically कैसा होगा, from higher concentration towards the lower concentration, ओके लेकिन अगर यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर अगर सपोज न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है, न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर सेल के अंदर हाई है और सेल के बाहर लो है, तो यहाँ पर सेल डू रिक्वायर मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट्स दे विल मूव फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन। भले ही एनर्जी का यूज लग जाए, भले ही देर इज अ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी utilized, but there is requirement of the nutrients to take place from the lower concentration towards the higher concentration। तो यहाँ पर जो है there is an example of the that is the active transportation। दूसरा, या तो फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं सिक्रेटरी प्रोडक्ट का, या तो फिर वेस्ट का। हियर वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, सपोज वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल लाइक द वेस्ट। सपोज दिस इज अ सेल, ओके, सपोज सेल के बाहर जो है द वेस्ट इट इज प्रेजेंट और सेल के अंदर भी वेस्ट प्रेजेंट है, ओके। सो सपोज हियर द वेस्ट विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल इट इज हाई एंड द वेस्ट विच इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द सेल इट इज लो। तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली देखने मिलेगा कि जो वेस्ट है इट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर वेस्ट जो है सेल के अंदर इफ इट इज लो और सेल के बाहर वेस्ट जो है वो हाई है, सो यहाँ पर वेस्ट इट इज टॉक्सिक टू द सेल। सो जरूरी है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे शुड मूव फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर, आई मीन लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन। वेस्ट का मूवमेंट होना जरूरी है बिकॉज द वेस्ट इट इज टॉक्सिक फॉर द सेल। सो भले ही एनर्जी का यूज हो जाए बट द वेस्ट इट शुड मूव आउटसाइड द सेल, दैट इज फ्रॉम लोअर concentration towards the higher concentration। so here that is why these are the example of the active transportation। even same with the ions। ions जो होते हैं inside the cell and outside the cell they are not equal। जैसे कि सोडियम ions जो होते हैं सेल के बाहर ज्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है। दूसरी बात, पोटेशियम ions जो है सेल के अंदर ज्यादा होते हैं, सेल के बाहर कम होते हैं। तो ये अनइक्विलिब्रियम जो है, यू कैन से नॉन इक्विलिब्रियम आयंस का जो है मेंटेन होना जरूरी है। सो ये जो आयन नॉन इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन कैसे होगा, ये भी ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही देखने मिलेगा।
So here we will take an example. Suppose these are the carrier protein. यहाँ पर सबसे पहले you can see there are the sodium binding site. यहाँ पर sodium binds होते हैं. So the three ions of sodium first they will bind, and there is a utilization of ATP done. और जब ATP का use होगा एक conformation change होगा, और इस तरीके से जो है sodium ions they will move out of the cell. और अब तभी potassium binding site जो है वो active हो जाएंगी, and now potassium they will get attracted towards the active binding side of this carrier molecule, and again here the phosphate it is going to get that is hydrolysis, and again there is going to be a conformation change, and potassium जो है वो कहाँ ला दिए जाएंगे, सेल के अंदर ला दिए जाएंगे. सो मेन बात ये है सोडियम बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम बाहर से अंदर आ रहे हैं, बट देर इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस, दैट इज द एटीपी. यू कैन सी किस तरीके से सोडियम बाहर चलेगा और पोटेशियम जो है वो अंदर आ रहे हैं. हियर देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी डन, देन ओनली द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सोडियम आउटसाइड एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पोटेशियम इनसाइड द सेल इट इज taking place. So here you can see कि पोटेशियम और सोडियम पंप है ये, ओके, जो कि हमें देख रहे हैं दैट इज इन द नर्व सेल ऑफ द स्क्विड. ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. सो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होता है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम होता है, और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल के अंदर ज्यादा होता है, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर कम होता है. सो उसी को ही मेंटेन करने के लिए जो है हियर द एटीपी इट इज बीन यूज. सो ये पंप है सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करेगा, और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा, सोडियम का भी और पोटेशियम का भी. सो सोडियम आयंस जो है दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द inside of the cell towards the exterior side outside the cell. So sodium जो है बाहर पहले ही होते हैं, और जो भी अगर सोडियम हो सेल के अंदर तो they will move from high that is lower concentration towards the higher concentration. So इसके लिए क्या चाहिए, ATP की जरूरत लगेगी, and here this is how the movement will takes place. So ATP का use हो रहा है for the release of the sodium from the inside to the outside of the cell, that is movement is taking place from lower concentration to higher concentration. Same with the potassium, potassium cell के अंदर ज्यादा है फिर भी potassium cell के अंदर आ रहे हैं, that is from lower concentration to higher concentration. So इस तरीके के movement में जो है there is a utilization of ATP done. 3 sodium जो है सेल के अंदर से बाहर जाते हैं, और 2 potassium ions जो हैं वो सेल के बाहर से सेल के अंदर आते हैं, and they require 1 ATP molecule it is being utilized. अब हम बात करेंगे जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू, डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो यहाँ पर देयर इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. इसी को ही हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं. सो सपोज सेल के अंदर जो है हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा है, चाहे कोई मॉलिक्यूल्स ले लीजिए चाहे आयंस ले लीजिए. हियर यहाँ पर दे आर गोइंग टू यूज सम एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शन, मतलब एटीपी का यूज किया जाएगा, एटीपी को ब्रेक डाउन किया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा, और यहाँ पर जो है तभी आयंस जो है दे विल मूव आउट ऑफ द सेल. यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल या तो फिर आप बोल सकते हैं एक आयन का मूवमेंट हो रहा है, ये कैरियर प्रोटीन से. सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट. ओके, ओनली सिंगल सोल्यूट बाय अ कैरियर प्रोटीन फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इट इज टेकिंग प्लेस. दिस इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट. दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज अ एक्टिव secondary active transportation, you can say indirect active transportation. यहाँ पर जो है it also requires the ATP. यहाँ पर here there is a transportation of the two solute it is taking place. यहाँ पर जो है here with the movement of one solute that is down its gradient, या तो फिर the solute movement is the up its gradient. Down gradient का मतलब होता है that is movement of molecules from higher concentration to lower concentration, and up gradient का मतलब है the movement of you can say solute or molecules from lower concentration to higher concentration. Here यहाँ पर जो है in this transportation you can see there is dual transportation process taking place. एक होता है antiport और दूसरा होता है symport. ओके, दोनों ही these are the dual transportation, मतलब दो solutes जो है उनका movement नजर आएगा. पहले हम बात करेंगे symport की. Symport जो है the transportation of the two solute it is taking place in the same direction. You can say only in one direction it is taking place. ग्लूकोज का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है. सो दिस ट्रांसपोर्टेशन इट इज टेकिंग
taking place from outside to inside of the cell. So this is called as sympod. एक साथ आ रहे हैं, so we call sympod. दूसरा आता है here the movement of the two solutes, it is taking place with opposite direction. अगर पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ पर सोडियम का एग्जिट हो रहा है इन outside the cell, but it is require the ATP. So this is how the examples were. Now we will talk about the endocytosis and the exocytosis process. यहाँ पर जो सेल हैं they are able to transport the molecule in the form of vesicles. अगर ये vesicles जो हैं they are formed and they are moving out of the cell, so this is called as exocytosis. अगर ये vesicles जो हैं they are moving and they are coming inside the cell, and this is called as endocytosis. So first we'll talk about the endocytosis. अगर सपोज सेल के बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और वो मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर होना है from extracellular to intracellular, there is a formation of a vesicle, and this is how by the vesicle formation the molecules they can get entered inside the cell. And here you can see the process जहाँ पर ये this is a plasma membrane, और plasma membrane जो है ये solid molecules का ingestion कर रहा है, fluid molecules का भी ingestion कर सकता है. So when the endocytosis is taking place of the solid molecules, okay, solid particles, this is called as phagocytosis, you can say cellular eating. सो एनगल्फमेंट हो रहा है. और इसी अगर बात को हम बोलें कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बदले अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सो वी कॉल देम पिनोसाइटोसिस और यू कैन से सेल्यूलर ड्रिंकिंग. सो फैगोसाइटोसिस जो है सेल कर सकता है लार्ज पार्टिकल्स का, जैसे कि बैक्टीरिया का या तो फिर सेल डीब्रिस का. इस तरीके से इंटरनलाइज कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स का बाय द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कोई कोई मॉलिक्यूल्स जो हैं यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ वाई शेप्ड रिसेप्टर्स होते हैं. सो जो भी सेल जिस मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं दे शो द रिसेप्टर्स, एंड बाय शोइंग द रिसेप्टर द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दे विल बाइंड टू द वाई शेप्ड रिसेप्टर, एंड दिस इज हाउ by the help of the formation of vesicle they are going to get entered inside the cell. अगर हम एक और एग्जांपल है, सपोज सेल के बाहर कोई बैक्टीरिया है, ओके, एंड दिस सेल वांट्स टू किल द बैक्टीरिया. तो यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने मिलेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा, एंड दीज आर द रिसेप्टर्स बाय व्हिच दिस बैक्टीरियम इट इज गोइंग टू गेट बीन अटैच्ड. और जैसे ही ये बैक्टीरिया अटैच्ड हो जाएगा रिसेप्टर्स के साथ, इंटरनलाइजेशन हो जाएगा, इट मींस द फैगोसाइटोसिस इट इज गोइंग टू टेक्स प्लेस. यू कैन सी हाउ द बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट इनसाइड द वेसिकल. अब ये जो वेसिकल है दिस इज कॉल्ड एज फैगोसोम. ये फैगोसोम आगे जाके लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा. लाइसोसोम में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि जैसे ये दोनों वेसिकल्स फ्यूज हो जाएंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दे विल डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, एंड नाउ द बैक्टीरिया इट इज बीन किल्ड. और ये जो भी फ्रेगमेंट्स होंगे बैक्टीरिया के, नाउ इट इज गोइंग टू गेट रिमूव आउट बाय द हेल्प ऑफ द एक्सोसाइटोसिस. तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दे आर गोइंग टू शो सम एक्सटेंशन फिंगर लाइक, एंड हियर दिस इज हाउ द वेसिकल दे आर गोइंग टू फॉर्म, एंड इनसाइड द वेसिकल देयर इज द बैक्टीरिया प्रेजेंट. इसको हम वेसिकल को बोलते हैं दिस इज अ फैगोसोम. फैगोसोम आगे जाके लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा ना, इसका नाम जो है अब चेंज हो जाएगा, उसको हम बुलाएंगे फैगोलाइसोसोम. और अब फैगोलाइसोसोम जो है लाइसोसोमल एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन कर देगा इस बैक्टीरिया का, एंड नाउ इट इज गोइंग टू रिलीज आउट ऑफ द सेल. तो वेसिकल्स का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ये जो एंडोसाइटोसिस हो रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस, जो कि अमीबा करते हैं ताकि वो फूड का इंटेक कर सकें. प्रोटोजोन्स भी ऐसे ही फैगोसाइटोसिस करते हैं ताकि वो फूड का इंटेक कर सकें. और इवन व्हेन वी टॉक अबाउट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी काफ़ी न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफाज हैं. अगर कोई पैथोजन आ जाता है तो फैगोसाइटोसिस के द्वारा ही उसको किल किया जाता है. सो मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स, ऑल आर द फैगोसाइटोटिक सेल्स जो कि एंडोसाइटोसिस करके पैथोजन को या तो फिर डेड सेल्स को इसी तरीके से मार देते हैं, किल करते हैं.
सो ये एंडोसाइटोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इवन व्हेन वी टॉक अबाउट वन मोर एग्जांपल, लाइक कोलेस्ट्रॉल भी ऐसी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे मेमेलियन सेल. अब हम बात करेंगे एक दूसरे की, दैट इज पिनोसाइटोसिस. अगर सॉलिड मटेरियल के बदले अगर कोई फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट हो, ओके, एंड इट इज हियर एंडोसाइटोसिस हो रहा है किसी फ्लूइड मटेरियल का, सो दिस इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस. सो जैसे कि दिस इज अ फ्लूइड और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन सी किस तरीके से फिंगर प्रोजेक्शन शो कर रहा है, एंड हियर दिस इज हाउ द वेसिकल इट इज फॉर्म. अब ये जो वेसिकल है इसको नाम जो है दिस इज कॉल्ड एज पीनोसोम, ना कि फैगोसोम. पीनोसोम जो है अब आगे जाके लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा और यहाँ पर इस फ्लूइड को जो है न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, एंड इस तरीके से अब वो सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है नाउ इट विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म. Next process is that is the exocytosis. Exocytosis जो है, suppose the debris is present, the waste material is present inside the cell, it will move out of the cell. So ये vesicles में ही present होते हैं debris या तो फिर waste material. सो जो भी एग्जिट करना है सेलुलर मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड द सेल, इट इज टेकिंग प्लेस बाय द हेल्प ऑफ द एक्सोसाइटोसिस. सो इस प्रोसेस में जो है वेसिकल्स वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आएंगे, एंड नाउ इट विल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो भी कंटेंट इट विल रिलीज आउट ऑफ द सेल, मतलब बाहर चला जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट में चला जाएगा. सो एक्सोसाइटोसिस अगर हम बात करें, द पेनक्रियाटिक सेल्स आर द वन विच इजीली secrete some enzymes, digestive enzymes out of the cell by the help of the exocytosis. अब हम बात करेंगे एक प्रोसेस की, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द स्ट्रीमिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू इट. अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लें, सपोज हमने यहाँ पर एक बीकर लिया है, ओके, सपोज दिस इज अ बीकर, और इसमें जो है हमने वाटर डाला है, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O. यहाँ पर जो है सपोज आई हैव टेकन रेजिन्स, ओके, जो रेजिन्स होते हैं, सपोज दिस इज अ रेजिन, वी हैव टेकन दिस इज द रेजिन. Resin जो है, here the water molecule in the resin it is low, and the water molecule outside here it is high. The water molecule outside it is high. Okay, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वाटर का, एज वी कैन सी देयर इज अ ग्रेडियंट प्रेजेंट ऑफ वाटर. रेजिन्स के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो है, और रेजिन्स के बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई है. वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ज्यादा है और रेजिन्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है. सो ऑटोमेटिकली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से अब जो रेजिन्स है वो क्या हो जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे, बिकॉज देयर हैज बीन एन एंट्री ऑफ द वाटर. सो ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. This is called as osmosis. Osmosis जो है it is classified into endoosmosis and exoosmosis. अगर water molecule जो है सेल के अंदर absorb हो रहा है, okay, so we call this as endoosmosis. अगर water molecule सेल से बाहर जा रहा है, then it is called as exoosmosis, that is exit of the water outside the cell. So this is how all about the plasma membrane was, the transportation of plasma membrane, and this is how the video ends, and thank you very much.